Text number 6. नाध्यो व्याधय क्लेशा दैवा भूतात्म हेतवः अजात शत्राव अभवन जंतूनाम राज्ञिकर्हि चेत्. Translation and purport by Srila Prabhupada. Because of the kings having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, diseases, or excessive heat or cold. Because राजा का कोई शत्रु ही नहीं है, तो जो सारे जीव जंतु हैं उनको किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है. ना तो कोई मेंटल डिस्ट्रेस है, ना कोई फिजिकल डिस्ट्रेस है, ना तो कोई धूप है, ना ज्यादा सर्दी है. 10 चैप्टर. तो इस तरह का वो एटमोस्फेयर है वहां पर. हु इज अंजुला जी? अनीता माता जी, यू विल रीड. हेलो. हरे कृष्णा. मैं आप रीड करिए. मेरा आवाज क्लियर आएगा? आ रहा है, क्लियर आ रहा है. To be non-violent to human beings and to be a killer or enemy of the poor animals is Saturn's philosophy. In this age, there is enmity toward poor animals, and therefore the poor creatures are always anxious. The reaction of the poor animals is being forced on human society, and therefore there is always the strain of cold or hot war between men individually, collectively, or nationally. At the time of Maharaja Yudhishthir, there were no different nations, although there were different subordinate states. The whole world was united, and the supreme head, being a trained king like Yudhishthira, kept all the inhabitants free from anxiety, diseases, and excessive heat and cold. They were not only economically well to do, but also physically fit and undisturbed by supernatural power, by enmity from other living beings, and by disturbance of bodily and mental agonies. There is a proverb in Bengali that a bad king spoils the kingdom and a bad housewife spoils the family. And this truth is applicable here also, because the king was pious and obedient to the Lord and sages, because he was no one's enemy, and because he was a recognized agent of the Lord and therefore protected by him. All the citizens under the king's protections were, so to speak, directly protected by the Lord and his authorized agents. Unless one is pious and recognized by the Lord, he cannot make others happy who are under his care. There is full cooperation between man and God and man and nature. And this conscious cooperation between man and God and man and nature, as exemplified by King Yudhishthir, can bring about happiness, peace, and prosperity in the world. The attitude of exploiting one another, the custom of the day, will only bring misery. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. और So, to be a non-violent to the human beings and to be a killer or an animal of the poor animals is Saturn's philosophy. In this age, there is enmity toward poor animals, and therefore poor creatures are always anxious. हमेशा उनके साथ एनमिटी, उनको मारने की इच्छा बना के रखते हैं. Always enmity is there. The reaction of poor animals is being forced on human society, and therefore there is always a strain of cold or hot war between men, individually, collectively, or nationally. Every action has a equal and opposite reaction. जब तुम किसी को परेशान करोगे तो तुम खुद पे ही परेशान हो जाओगे. ये दुनिया का ये रूल है कर्मा फिलॉसफी का.
रूल ऑफ द कर्मा फिलोसफी। किसी पे अत्याचार करोगे तो तुम्हारे पे खुद पे भी अत्याचार होगा, चाहे तो कलेक्टिव होगा या इंडिविजुअल होगा या नेशनली होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कौन देगा? साक्षी जी। दुर्योधन के कर्मों की वजह से प्रभु जी, जो वॉर हुआ इतना बड़ा। हाँ, आजकल के सिनारियो में बताइए। यूक्रेन रशिया वॉर। प्रभु जी को कोरोना। कोरोना वायरस। अच्छा। कोरोना वायरस क्यों आया है? तो कभी आया ही नहीं कभी तक। प्रभु जी क्योंकि जो है निर्दोष जो जीव है उनको जो है उनको खाने का प्रचलन चल गया था, तो उन्होंने जो है उन्हीं के द्वारा जो है ये कोरोना वायरस फैला है। तो यस, उसी की प्रतिक्रिया हुई है नॉन वेज खाने की। यस। अगर तुम जानवरों को मार के खाओगे तो उसका रिएक्शन तो मिलेगा ना तुमको, ना? किसी की हत्या कर रहे हो और तुम सोचोगे कि मुझे कुछ ना हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। The reaction is coming in a very great. Lakhs of people are dying. और प्रभु जी हिंसक हो जाते हैं, एक पशु जो है, हाँ, अगर ये से हम पशुओं को मारेंगे तो वो हिंसक प्रवृत्ति अपना लेते हैं, फिर हम लोग उनको दोष देते हैं कि ये हाँ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यस। तो इसलिए ये ये जो कर्मा की फिलॉसफी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एकदम रिएक्शन मिलता है या फिर थोड़े टाइम के बाद मिलता है या बहुत टाइम के बाद मिलता है, मिलता जरूर है। कलेक्टिवली, नेशनली, इंडिविजुअली मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे there were no different nations, although there were different subordinate states. The whole world was united. The supreme head, being a trained king like Yudhishthira, kept all the inhabitants free from anxiety, diseases, and excessive heat and cold. तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे कोई भी और नेशनैलिटीज नहीं थे, एक ही नेशन, पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड। पूरे वर्ल्ड का नाम क्या था? भारत। 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 भारतवर्ष। भारतवर्ष, पूरा प्लैनेट, पूरा अर्थली प्लैनेट युधिष्ठिर महाराज रूल कर रहे हैं। और वहां पर लोगों को कोई एंजाइटी नहीं है, कोई किसी बीमारी नहीं है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और वो are not economically well to do but also physically fit, undisturbed by supernatural power, by enmity from other living beings, and by disturbance from bodily and mental agonies. इस तरह राजा का राज्य होता है ना? ऐसा राज्य हो कि लोगों को ये सारा बेनिफिट मिले, फिजिकली फिट रहेंगे, पूरे अनडिस्टर्ब रहेंगे, किसी तरह की एनवियसनेस नहीं होगी, कोई बॉडीली मेंटल लाइक कुछ नहीं होगा, सारा कुछ स्वस्थ रहेंगे। देयर इज अ प्रभु proverb in इसमें Bengali. हाँ, तो उसमें वो आदि बौद्धिक आदि दैविक ये सारा बैलेंस था इसका यस, उसमें। यस। क्योंकि प्रभु जी लेकिन एक महाभारत के युद्ध से पहले तो अलग अलग राज्य थे ना, लेकिन युधिष्ठिर जब राजा बने तब सब यूनाइट हो गए थे, क्योंकि सब लोग मर गए थे, सब उनके शत्रु रहे ही नहीं थे, हम्म, इसीलिए सब जो है एक हो गया था। हम्म। So it was like that at that time. So it is spoiling. There is a proverb in Bengali that a bad king spoils a kingdom and a bad housewife spoils a family. This truth is applicable here also, because the king was pious and obedient to the Lord and sages, because he was no one's enemy, and because he was the recognized agent of the Lord, therefore protected by him. All the citizens under the king's protection were, so to speak, directly protected by the Lord and his authorized agents. तो उसको क्या बोलते हैं बंगाली प्रोवर्ब को? किसी को पता है बंगाली प्रोवर्ब? कभी सुना नहीं है बंगाली में तो कुछ, बंगाली मैंने नहीं तो आते? हाँ नहीं, हमारा कोई इतना संपर्क नहीं है बंगाली से। एक बैड किंग जो है पूरे राज्य का सर्वनाश कर देता है,
और एक बैड हाउसवाइफ, धर्म पत्नी बैड हो, ये अनचेस्ट हो। ये सुना है, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये सुना हुआ है। हाँ, एक खराब बीवी सारे परिवार को सर्वनाश कर देती है। तो ये इसीलिए ये ट्रुथ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि किंग पायस है, ओबीडियंट है भगवान पे, सेजिस पे, और किसी का वो दुश्मन नहीं है, भगवान का एजेंट है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भगवान उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सारे लोग लॉर्ड और उनके ऑथराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्टेड हैं। Unless one is pious, recognized by the Lord, he cannot make others happy or under his care. There is full cooperation between man and God, man and nature. This conscious cooperation between man and God, man and nature, as exemplified by Yudhishthira Maharaj, can bring about happiness, peace, and prosperity in the world. The attitude of exploiting one another, the custom of the day, will only bring misery. तब तक तुम पायस नहीं हो, भगवान ने तुमको पहचाना नहीं है, तुम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। तो भगवान में और मनुष्य में पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए, नेचर, ये कॉन्शियस कोऑपरेशन है। और वो कोऑपरेशन युधिष्ठिर महाराज ने उसको अपने जीवन में उतारा है, और वही खुशी लेके आ रहा है, वही शांति लेके आ रहा है, वही सारा प्रॉस्पेरिटी पूरे जगत में लेकर आ रहा है। अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो उससे सिर्फ कष्ट ही आएगा, कोरोना वायरस ही आएगा एक्सप्लॉयटेशन से। तो डोंट एक्सप्लॉयट and you have the full cooperation with the Lord. Text number 7. उषित्वा हास्तिने पूरे माशान कत्वयान हरिः सुहृदां च विशोकाया स्वशुश्च प्रिया कामया. Translation purport by Srila Prabhupada. Sri Hari Lord Shri Krishna resided at Hastinapura for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra. भगवान थोड़े दिन के लिए और रुक जाते हैं, जब राजसूय सैक्रिफाइस में जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और रुक जाते हैं, और थोड़े महीनों के लिए, अपने रिलेटिव्स को खुश करने के लिए और अपनी बहन को सुभद्रा को खुश करने के लिए. यस नीता जी. Hare Krishna. Krishna was to start for Dwaraka, his own kingdom, after the battle of Kurukshetra and Yudhishthira's being enthroned, but to oblige the request of Maharaja Yudhishthira and to show special mercy to Bhishma Deva, Lord Krishna stopped at Hastinapur, the capital of the Pandavas. The Lord decided to stay specially to pacify the aggrieved king as well as to please Subhadra, sister of Lord Krishna. Subhadra was specially to be pacified because she lost her only son Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife Uttara, mother of Maharaja Parikshit. The Lord is always pleased to satisfy his devotees in any capacity. Only his devotees can play the parts of his relatives. The Lord is absolute. Hare Krishna. Hare Krishna. So Krishna was to start for Dwaraka, his own kingdom. कुरुक्षेत्र वार के बाद द्वारका जाना है, द्वारकाधीश है वो, युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पे बिठाना है. So to oblige the request of Yudhishthira Maharaj and to show special mercy to Bhishma Dev, Lord Krishna stopped at Hastinapura, the capital of Pandavas. भगवान अपने जब उनके भक्त होते हैं, जब कोई प्रार्थना करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान क्योंकि वो भक्त वत्सल है, भक्तों की प्रोटेक्शन, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, तो भगवान रुक जाते हैं. Pacify the aggrieved king as well as to please Subhadra, sister of Krishna. Subhadra was specially to be pacified because she lost her only son. अभी भी शादी हुई है और शादी के जस्ट थोड़े टाइम के बाद उसका वध हो गया है. उसके ऊपर क्या बीतरी होगी बहन पे. देखा, अभी अभी शादी किया और शादी के बाद रणभूमि में मर गया.
कैसा बीत रहा होगा उसको। So she wants Krishna should be there for me, for my solace. The boy left his wife Uttara, the mother of Maharaj Parikshit. Lord is always pleased to satisfy his devotees in any capacity. These devotees can play the parts of relatives. तो अभिमन्यु का लीला किसको पता है? साक्षी जी, साक्षी जी आपको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। अभिमन्यु की लीला आप पूछ रहे हैं? यस। तो प्रभु जी उनका तो वध हो गया था। वध तो हो गया था, वध से पहले क्या हुआ था? बर्थ से पहले क्या हुआ था? उन्होंने बर्थ से पहले चक्रव्यूह में जाने के बारे में सुन लिया था भगवान से, लेकिन उनको वहां से एग्जिट कैसे करना है ये नहीं पता था। उस भगवान से समय नहीं, उत्तरा जी सो गई थी। भगवान से नहीं सुना था, किसी और से सुना था। हाँ हाँ, किसी अर्जुन और से से सुना सुना था, अर्जुन से सुना था। हाँ जी। और चक्रव्यूह में किस एंटर टाइम पे तो हो सुना था, सकता है। कैसे सुना था उन्होंने? घर पे। मुझे बस ये ध्यान आ रहा है कि उन्होंने एंट्री पाथवे सुन लिया था, एग्जिट पाथवे वो सुन नहीं पाए क्योंकि उत्तरा जी सो गई थी। Yes. So when he was रानी in हो गई home, थी, तो सुभद्रा। अपने सुभद्रा जी सो गई। हाँ जी, सुभद्रा जी सो गई थी, सॉरी। वाइफ उत्तरा जी तो सुभद्रा उनकी को वाइफ सुना रहे थी। होते हैं, सुभद्रा को सुना रहे होते हैं, और वो चक्रव्यूह से निकलना, एंटर करने के लिए बता रहे होते हैं सुभद्रा महारानी को। तो सुभद्रा महारानी, रात का समय होता है, वो सुन रही होती है, सुन रही होती है, तो सुनते 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 सो जाती है। और वो निकलते हुए तो जाना कैसे वो तो पता चल जाता है, आना कैसे वो पता नहीं है। और उस समय वो चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने रखा है इस सारे पांडवों को पूरा टारगेट बनाने के लिए। और उस दिन जो अर्जुन जो है वो बहुत दूर चले गए हैं, लड़ाई करते 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 बहुत दूर चले गए हैं। उनका वापिस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर चक्रव्यूह है, और पांडवों को किसी को भी चक्रव्यूह के अंदर घुसना नहीं आता है। नोबडी नो हाउ टू एंटर द चक्रव्यूह। सिर्फ अभिमन्यु को पता है चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है, और बाहर निकलना नहीं आता। तो पांडव क्या सोचते हैं कि हम अंदर चले जाएंगे, अभिमन्यु को आगे लेके अंदर तो चले आते हैं, बाहर कैसे निकलना अपने आप हो जाएगा। बाहर कैसे निकलना अपने आप कर लेंगे। और जब अंदर घुसते हैं तो सिर्फ अभिमन्यु ही अंदर घुस पाता है, और बाकी वो जो पांडव है घुस ही नहीं पाते। उनको कौन रोक देता है वहां पर? प्रभु जी जयद्रथ रोकता है। Yes. Jayadratha stopped them at the edge, at the entry of the Chakravyuh. He was stopped them. You cannot go. Only Abhimanyu alone entered the arena of Chakravyuh. 7वें द्वार पर। और वहां पर 7 महारथी है। कौन कौन से थे? कौन से थे 7? प्रभु जी द्रोण, दुर्योधन था, दुर्योधन, दुर्योधन, जयद्रथ और कर्ण। जयद्रथ नहीं था। कर्ण। जयद्रथ तो गेट पे कर्ण, खड़े थे ना। प्रभु जी कर्ण। जयद्रथ नहीं तो उसके सर पर लात मारी थी, नहीं नहीं वो नहीं। बाद में अभिमन्यु आए तो मर थे। गया था। नो नो नो। तभी तो जयद्रथ को मारने का प्रण किया था कि मरने के बाद भी तुमने उसको जो 7 मारा था। पीपल हैं उसमें जयद्रथ नहीं है प्रभा जी। कर्ण, प्रभु जी कर्ण द्रोणाचार्य, था, कर्ण कर्ण था, कर्ण थे, दुर्योधन थे, दुर्योधन था, दुशासन था, और वो दुशासन, थे गुरु 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 थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे। और 5 हो गए प्रभु जी, 7 थे। 7 पीपल। प्रभु जी 5 तो याद है। और कौन था? द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, कर्ण और प्रभु जी एक वो राजा था जो जो इनका रिलेटिव था, मामा। शाल्व राजा थे, शाल्व राजा, शाल। राजा शाल। द्रोणाचार्य के बेटे भी थे। प्रभु जी वो तो अश्वत्थामा था क्या? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा थे।
ये ये आपके लिए, सबके लिए असाइनमेंट है कि पूरा। प्रभु जी मैं प्रभु जी ये तो द्रोणाचार्य, कर्ण थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य प्रभाव शकुनी भी थे, शकुनी भी थे। और शकुनी भी हो गए थे। और हाँ प्रभु जी शकुनी भी थे, 7 तो हो गए। 1 2 3। कृतवर्मा कौन थे प्रभु जी? कृतवर्मा कृपाचार्य के बेटे होंगे वर्मा। डॉक्टर नहीं बाप। दुर्योधन भी तो था, कृतवर्मा दुर्योधन। नकुल और सहदेव के मामा जी ना, शाल। शाल्व राजा थे प्रभु जी, शाल्व राजा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, कल मुझे बताइए, है ना। हाँ प्रभु जी ये तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा, तो गूगल से देखेंगे। स्टडी करके अच्छी तरह कल मुझे बताइए कौन से 7 ठीक लोग है। थे। उन्होंने क्या किया था कि चक्रव्यूह में होता है कि एक आदमी एक से लड़ेगा, 1 person शुड विद 1 person। वो इकट्ठे ही लड़े थे। उन्होंने क्या किया, सातों ने दुशासन एक भी था साथ, प्रभु जी, दुशासन। हाँ मैंने कल बोला था कल दुशासन। बताइएगा, एक साथ प्रहार कर दिया छोटे से अभिमन्यु को। अभिमन्यु की एज क्या थी? 16 ईयर्स। only 16 years, is not a major also, मेजर भी नहीं और है। प्रभु जी उसमें ये भी था कि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाना है, लेकिन उन्होंने फिर भी जब उनके सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने तोड़ डाले अभिमन्यु के, उसके बाद भी उनको उनके ऊपर हाथ उठाए, जब वो हाँ पहिया लेकर वही उन्होंने तो, वो चलाया था। निहत्था था। हाँ वो निहत्था था, तब निहत्था भी था, उन लोगों ने, हाँ फिर उन्होंने भी। निहत्थे पर चक्र भी। चक्र ये उठाया था injustice कोई। is a full चक्र injustice, उठाया था फिर उन्होंने, पहिया। is a full injustice। तो इतना ये इंजस्टिस किया, और मरने के बाद लहू लुहान होकर जब वो गिर गए थे, उसके बाद भी उनको पैरों से, उनको पैरों पैर लातों से उसको मारा था, जब कर्ण ने रोका था। so this is a demoniac cowardism they have showed kill a, हाँ to kill a young boy, and वो 7 of जब them they are attacking simultaneously without he is not having weapon, and निहत्थे को वो मार रहे हैं। तो इसमें वो बदले की भावना इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हो गई कि तो उनकी तो उन्होंने और फिर उन्होंने सारी रूल्स एंड बुद्धि रेगुलेशन खत्म। को भी हाँ डिसोबे कर दिया, जो सब। जो युद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको भी डिसोबे करके वो ऐसा कर रहे हैं। तो उसकी माँ को शांति देने के लिए भगवान कृष्ण वहां पर रुक जाते हैं, है ना? The Lord is always pleased to satisfy his devotee in any capacity. Only his devotees can play the parts of his relatives. The Lord is absolute. भगवान तो एब्सोल्यूट है। तो ये लीला को हमें मनन करना है, इनका ध्यान करना है। टेक्स्ट नंबर 8। आमन्त्र्य चाभुन्युजन ज्ञातः परिष्वाज्य अभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respects to Maharaj Yudhishthir by bowing down at his feet, and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and receiving their obeisances, got into his chariot. तो उसके बाद भगवान जब उनसे परमिशन मांग रहे कि मुझे वापस जाना है, और युधिष्ठिर महाराज परमिशन दे देते हैं, भगवान उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको होमेज करते हैं, उनको बो डाउन करते हैं। वाई कृष्णा इज गोइंग डाउन? क्योंकि प्रभु जी युधिष्ठिर उनके एल्डर ब्रदर थे, कजन ब्रदर थे। एल्डर ब्रदर थे और राजा है, एल्डर ब्रदर राजा, है हाँ और राजा है, इसलिए भगवान एल्डर। उनको प्रणाम कर रहे हैं। और प्रभु जी भगवान जो है जब बहुत प्रसन्न होते हैं, जब उनके जो भक्त हैं वो उनसे एक रिलेशन स्थापित करके, और वो अपने आप उनको अपने से छोटा समझते हैं। दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ कृष्ण। भगवान है, मैं तो भगवान हूँ, मुझे क्या नमस्कार करने की जरूरत है किसी को। और कृष्णा इज शोइंग द ह्यूमिलिटी। इवन द लॉर्ड इज पेइंग ओबेसेंसेस टू युधिष्ठिर महाराज। अगर भगवान किसी को प्रणाम कर सकते हैं तो हमको तो 1000 दंडवत, 10,000 दंडवत प्रणाम करने चाहिए। बट हम मंदिर में आते हैं, 2 बारी दंडवत प्रणाम करने में थक जाते हैं। और जो गोस्वामी है वो 1000 दंडवत रोज करते थे। सनातन गोस्वामी क्या करते थे? प्रभु जी 1000 बार जो है वो होते थे नतमस्तक, 10। और क्या करते थे?
प्रभु जी माला जपते थे बहुत ज्यादा, आपने बोला था। और क्या करते थे? प्रभु दंडवत होते थे 1000 टाइम्स पर डे। और क्या करते दंडवत प्रणाम। और क्या करते थे? मुझे यही पता है। सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करते हाँ थे। हाँ, या परिक्रमा का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। हम साल में एक ही बारी करते हैं, मतलब हम साल में एक बारी करते हैं, और एक बारी करके हमारा बैंड बज जाता था। हाँ, और वो प्रभु जी कह रहे थे पहले यात्रा लंबी होती थी गोवर्धन की, अब थोड़ी छोटी हो गई है। हाँ, वो बोलते हैं ना गोवर्धन छोटा होते जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना। कितना छोटा हो रहा है अनीता जी? वो मुझे नहीं पता, पर ऐसे बोले हैं कि इसे भी कुछ ऐसा कुछ मस्टर्ड वो सीड मिला देखा है हुआ है? कि तुम। मस्टर्ड सीड देखा है? मस्टर्ड का सीड, हाँ, सरसों का खेत हाँ है। हाँ हाँ, वो तो हम लोग सब्जी में लगाते हैं। वो उतना साइज हर दिन छोटा हो रहा है। ओ बाबा। एवरी डे वो एक मस्टर्ड सीड के साइज का छोटा होता जा रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में इतना अत्याचार है, इतना पाप है, वो गोवर्धन लुप्त होता जा रहा है। सो ही वॉज डूइंग द परिक्रमा एवरी डे। और एज क्या थी? अभी तो हम 25 साल में, 30 साल में, अब तो यंग एज में है, 35 40, यंग, वी आर यंग पीपल। सनातन गोस्वामी की एज क्या थी? क्या प्रभु जी? जो परिक्रमा करते थे हर रोज, उनका उम्र क्या था, आयु क्या था सनातन प्रभु जी गोस्वामी? बहुत बहुत एजिड हो गए थे वो तो। ही वॉज और एक 90, बार तो बहुत बीमार बीमार भी हो गए थे लास्ट में तो। 90 years old, 90। 50 ईयर। 50 years नहीं, 90। 90 साल, 50 साल। 90 ईयर। हाँ, 90, 90 साल। 90 साल में लाठियां निकल जाती हैं सबकी। सही बात है। हाँ, तो ही इज डूइंग परिक्रमा एवरी डे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि आपको ये रोज परिक्रमा आपकी हेल्थ को अलाउ नहीं करती है, आप ये रोज मत करिए। तो मैंने शपथ ली है, वो ली है, मुझे रोज करना है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? उनको एक क्या शिला देते हैं? है ना। यस, वो शिला देते हैं। शिला में बांसुरी का चिन्ह है, गौ माता का चरण चिन्ह है, 4 चिन्ह है प्रभु जी, 4। चिन्ह है, एक और चिन्ह है। और वो चिन्ह देते हैं, वो शिला देते हैं। इस शिला का भी अगर तुम 4 बारी परिक्रमा कर लो तो गोवर्धन का परिक्रमा हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो वो जो शिला अभी कहाँ पर है? दामोदर मंदिर में, कृष्ण दामोदर मंदिर में। प्रभु जी राधा रमन मंदिर में। नहीं नहीं, दामोदर मंदिर में। दामोदर मंदिर। हम लोग हाँ देख के आए थे कई हाँ दामोदर साल मंदिर दामोदर। पहले। में वहां तो राधा रमन मंदिर में तो गोपाल भट्ट जी ने शिला लेकर बनाया। हाँ हाँ वहाँ हाँ। दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे। प्रभुपाद जी का हाँ कमरा है, प्रभुपाद जी की रसोई है। और प्रभुपाद 6 साल अमेरिका जाने से पहले उसी मंदिर में प्रभुपाद जी ने बैठ के, पहला ये जो हम भागवतम जो कर रहे हैं, ये जो भागवतम है, पहला कैंटो और दूसरा कैंटो उसी कमरे में बैठ के लिखा है। और प्रभुपाद जी कैसे, जैसे लिखते नहीं थे, वो टाइपिंग करते थे, टाइपराइटर। प्रभुपाद जी के पास एक वो टाइपराइटर, भी वहां रखा है। और टाइपराइटर में ऐसे सारी उंगलियां नहीं चलाते थे वो, कि 10 उंगलियां चल रही। प्रभुपाद जी की सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर चलती थी, एक हाँ। उंगली। एक उंगली से वो टाइप करके 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 उन्होंने पूरा फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो लिखा है। शिला प्रभुपाद की जय। की जय। वो 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 सारा टाइपिंग कर रहे हैं उसको, कैंटो इस टाइपिंग, और उसका हम अभी लाभ उठा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में प्रिंट होके भागवतम चली गई है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है?
So he is giving the permission, he is paying obeisances, and king embraced him. After this, the Lord being embraced by others, receiving their obeisances, got into his chariot. तो भगवान जा रहे हैं. Yes, Rita Mataji can read. Maharaja Yudhishthir was the elder cousin of Lord Krishna, and therefore, while departing from him, the Lord bowed down at the king's feet. The king embraced him as a younger brother. Although the king knew perfectly well that Krishna is the supreme personality of Godhead, the Lord takes pleasure when some of his devotees accept him as less important in terms of love. No one is greater than or equal to the Lord, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. These are all transcendental pastimes of the Lord. The impersonalist cannot enter into the supernatural roles played by the devotee of the Lord. Thereafter, Bhim and Arjun embraced the Lord because they were of same age. But Nakul and Sahadev bow down before the Lord because they were younger than he. Hare Krishna. Hare Krishna. So Yudhishthira Maharaj was the elder cousin of Lord Krishna. The elder cousin. And therefore, while departing from the Lord, bowed down before the king's feet. The king embraced him as younger brother. For the king knew perfectly well Krishna is the supreme personality of God. The Lord takes pleasure when some of the devotees accept him as less important in terms of love. क्योंकि वैकुंठ लोक में सारे लोग भगवान की पूजा करते रहते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं. भगवान बड़ा थक जाते हैं. ये सारे लोग पूजा ही करते जा रहे हैं, प्रेयर करते जा रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई खेले, मेरे साथ कोई खाना खाए, सोए, मेरे को कोई डांट लगाए, है ना, मुझे भी किसी को प्रणाम करना पड़े. भगवान को आनंद लगता है जब भगवान लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भगवान उसमें प्लेजर लेते हैं. तो इसी तरह वो प्रणाम कर रहे युधिष्ठिर महाराज. और यशोदा मैया क्या, जो छड़ी को देख के भगवान भाग रहे हैं, डर रहे हैं कि ये डंडा लगाएगी मेरे, ये छड़ी मारेगी मुझको, भाग रहे हैं. तो दिस इज कृष्णा इज टेकिंग प्लेजर एक्चुअली. Gopis are telling Krishna, you are a chaliya, you are a cheater. Krishna is taking pleasure. No one is greater than or equal to the Lord, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. These are all the transcendental pastimes of the Lord. The impersonalists cannot enter in the supernatural roles played by the devotee of the Lord. Therefore, the Bhima and Arjuna embraced the Lord because they were of the same age. But Nakul and Sahadev bowed down before the Lord because they are younger than him. तो जो सेम एज है उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं. जो एल्डर है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जो यंगर है उन पे करुणा की जाती है. इस तरह ये बिहेवियर किया जाता है. दिस इज अ बिहेवियर. तो आज हमें राधा रानी का स्पेशल दर्शन है, वो हम दिखा रहे हैं. तो राधा रानी का बर्थ कहाँ पर हुआ था? Raval